Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease, and in today's video we are going to start the numericals of trading account, chapter final accounts from class 10th ICSC. Okay, final accounts. So let's here first take the screenshot of the question. Here you have the trading account you have to prepare, and these are the items you have been given, okay, or accounts. And here you have to, again, the next question is you have to prepare a trading account, okay. Now just take the screenshot and afterwards I'm going to start the question to be solved on the whiteboard, okay. And closing stock is also mentioned here, okay. Only today we will do this trading account, not profit and loss account, only trading account. One by one we are going to start the other, okay. So let me start the question. So I'm going to prepare here first the trading account and how it looks like, somewhat like this. You have to draw T shape like this, okay? Okay, so this is a kind of a, you can say, a trading account. Okay, first you have to write the heading here. We are doing question number 1. Trading account. You have the screenshot of the question, okay? For the year ended. अब जो भी आपका मेंशन होगा for the year ended, for example in the question it's there 31st December 2023. Okay. Now on this side you're going to write debit. On the other side you're going to write credit. That is the left side debit and this one is right side credit. Always remember सब पे marks होते हैं. Then you're going to put the heading particulars, amount and rupees. आपको format already मैं दे चुकी हूँ, right? Particulars, amount and rupees. Okay, now all the direct expenses are going to be posted on the debit hand side, okay, and the incomes on the left hand side, that is on the on the credit hand side, okay, not left. डेबिट और क्रेडिट याद रखिएगा. यहाँ पे सबसे पहले आप टू लिख लेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप बाय लिख लेंगे. Always you have to post first entry as opening stock. Always remember this, right? So here you have the opening stock. Opening stock आपका देखिए क्वेश्चन में गिवन होगा 55,000. I have already shared you the screenshot. अपने आप भी सॉल्व करिएगा, बाद में प्रैक्टिस करिएगा. Then after that you need to take care of the purchases. Purchases के साथ एक बार आप देखते रहिएगा, रिटर्न्स हैं, क्रेडिट्स हैं, कुछ तो नहीं गिवन है. तो कैश परचेजेस गिवन 35,000 और इसके आगे हमें लिखा है रिटर्न आउटवर्ड्स भी है, ओके. तो रिटर्न आउटवर्ड्स भी है एंड क्रेडिट परचेज भी. तो पहले हम करते हैं, क्या करते हैं, परचेजेस को हम इनर कॉलम में लिख लेते हैं बिकॉज दो चीजें हमें और रिकॉर्ड करनी है. ऐड इसमें हम करेंगे क्रेडिट परचेजेस, ओके. क्रेडिट परचेजेस कितनी है, 55,000. इसमें से हम लेस कर देंगे रिटर्न आउटवर्ड. रिटर्न आउटवर्ड और यू कैन से इट्स परचेज रिटर्न 5,000. So how much you will get? 35,000 plus 55,000 minus 5,000, you will get 85,000. I think इतना स्टेप सबको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स को. प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. नाउ यू हैव टू just take out all the direct expenses. For example here, यहाँ पे कैश सेल्स है तो यहाँ पे हम पहले सेल्स कर देंगे, राइट. तो इसमें भी सेल्स भी आपकी कितनी है,
क्रेडिट भी है और रिटर्न्स भी है, राइट। 70,000, 75,000 प्लस क्रेडिट सेल्स कितनी गिवन है, और रिटर्न इनवर्ड्स माइनस करना है। तो जो जो आइटम आते जा रहे हैं मैं उसको रिकॉर्ड करते जा रही हूँ, राइट। रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न इनवर्ड्स कितना है, 8,000। ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, इतना साइन भी चाहे लगा ले अपनी समझ के लिए। एंड क्रेडिट सेल्स है 1,20,000। ओके, नाउ 75,000 प्लस 1,20,000 minus 8,000. So you will get here 1,87,000. Okay. Now credit sales भी हो गया। Now carriage inward, carriage inward हम ट्रेडिंग में लिखते हैं और आउटवर्ड हम लिखते हैं आपका, बिकॉज इट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, कैरेज इनवर्ड आपका है 4,000। ओके, देन वेजेस है, वेजेस आप हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं एंड इसकी एंट्री, एंड प्रॉफिट एंड लॉस में करते हैं सैलरीज की एंट्री। ओके, सो वेजेस आर 32,500। देन फ्रेट, फ्रेट क्या होता है, फ्रेट इज व्हाट, इट इज द मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑन गुड्स, तो ये भी डायरेक्ट में आ जाएगा। तो टू फ्रेट, फ्रेट कितना है आपका, दिस इज 1,500। बस इसी तरह आपको एंट्री करनी है और कुछ नहीं लिखना है इसमें। कैश इन हैंड बैलेंस शीट में जाता है, फ्यूल एंड पावर, यस यू हैव टू रिकॉर्ड फ्यूल एंड पावर। फ्यूल एंड पावर कितना है आपका, 4,200। ओके, देन क्लोजिंग स्टॉक इज ऑल्सो गिवन, तो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा आपकी यहाँ पे रिकॉर्ड होती है क्रेडिट साइड पे, ट्रेडिंग अकाउंट की। ओके, और बाद में अगर इसका बाहर एडजस्टमेंट होता है तो हम इसको असेट साइड पे कर देते हैं, राइट। वो तो बाद में बताऊंगी, अभी आप इतना समझ लो ट्रेडिंग अकाउंट में आपके क्या क्या आइटम्स आते हैं। नाउ वी हैव टू बैलेंस दिस। ठीक है, तो पहले हम इधर का ऐड कर लेते हैं, 1,87,000 प्लस 50,000, सो यू विल गेट 2,37,000। देखो यहाँ पर का आ रहा है क्रेडिट साइड अमाउंट, और डेबिट कितना आ रहा है, लेट्स सी, 55,000 प्लस 85,000 प्लस 4,000 प्लस 32,500 प्लस 1,500 प्लस 4,200। तो आपका ये आ रहा था 1,82,200। तो जाहिर सी बात है आपका ये क्रेडिट ज़्यादा है तो इसमें ये प्रॉफिट है। तो 2,37,000 माइनस 1,82,200, सो यू विल गेट हियर, यहाँ पर का अमाउंट ज़्यादा है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2,37,000, 2,37,000 टू, अब ग्रॉस प्रॉफिट आया ना, टू ग्रॉस प्रॉफिट transferred to profit and loss account। कितना हो गया दोनों का डिफरेंस आपका, 54,800। अब हम ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ओके, आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर नाउ। अगर ग्रॉस लॉस होता तो यानी कि डेबिट का साइड आपका ज्यादा अमाउंट होता, तो हम इधर ग्रॉस लॉस कर दे, बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, इस तरह आपको मेंशन करना है, ये तो मैंने अलग से लिख दिया है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा आपकी क्रेडिट पे ही आएगी। ओके, नाउ लेट्स डू द अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सो हियर
ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए? क्वेश्चन नंबर 2, अगेन हेडिंग डालनी है, ट्रेडिंग अकाउंट। अब मान ली फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा है नाम, तो ऑफ मिस्टर राम, ठीक है, फॉर द ईयर ended March 31st, 2023. I just forgot to make the line. ये particulars और an amount की line हो जाएगी. Here you have this line. ओके, थोड़ी तिरछी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्केल से ही करिएगा. ओके, now it's quite clear. Now I'm going to write the headings. सबसे पहले डेबिट, क्रेडिट, इन सबके मार्क्स होते हैं, तो प्लीज डोंट फॉरगेट दैट. पर्टिकुलर्स, अमाउंट, रुपीज ऐसे ही लिखना है. Here you're going to write particulars, अमाउंट, रुपीस. ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? जो भी दिया है वो तो दिया है, उसके अलावा आपको बाहर क्वेश्चन ने दिया है एक एंट्री करने की, एडजस्टमेंट. दैट इज अ क्लोजिंग स्टॉक. तो वी नो क्लोजिंग स्टॉक तो हमेशा हम यहाँ पे सबसे पहले आप करेंगे डू एंड बाय. तो अब आपका ये सॉर्ट आउट हो गया पूरा अकाउंट. नाउ यू हैव जस्ट टू पोस्ट द एंट्रीज, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट हैंड साइड एंड इनकम्स ऑन द क्रेडिट साइड, राइट. सबसे पहले हम कर लेते हैं टू ओपनिंग स्टॉक. Now you can see in the opening stock, it's given raw material, amount लिखा है 10,000, and then finished goods. तो हम इसको as it is note down कर लेंगे, ठीक है. Finished goods is 5,000, so total it is 15,000. Okay, then sales. जैसे जैसे आइटम्स आ रहे हैं वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड दैट. ओके, सेल्स में सबसे पहले हम देख लेंगे कि रिटर्न्स तो नहीं है. ओके, तो रिटर्न्स, यस गिवन सेल्स रिटर्न. तो क्रेडिट सेल्स तो कहीं नहीं, तो हम इसमें से लेस कर देंगे रिटर्न्स. और सेल्स आपकी कितनी थी? 5,20,000. यू शुड नो द आइटम्स. अगर आपको पता है कि कहाँ पे क्या चीज़ प्लेस करनी है तो बहुत अच्छा रहता है इसमें, एंड कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होता है एंट्रीज पास करने में. सो यू विल गेट हियर 5,20,000 में से 20,000 माइनस कर देंगे. अब रिटर्न्स है तो ये आपका आ गया 5 लाख. अब यहीं पे हम एंट्री कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक की. ओके, इसमें कोई और ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं आते हैं, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में क्या गिवन है आपको? रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड्स. So raw materials are 6,000 and then 15,000. टोटल आपका आ गया यहाँ पे 21,000. ओके, तो ये क्लियर हो गया. देखो 21,000 मैंने थोड़ा सा इधर करके लिख दिया. ना इट्स ओके, राइट. सेल्स तक हो गया. अब वेजेस, जाहिर सी बात है, लेकिन हम पहले क्या करेंगे? परचेजेस ऐड कर लेंगे. जब यहाँ पे सेल्स करो तो हमेशा परचेजेस भी ऐड कर लो ताकि ज्यादा आपको आसानी रहे. परचेजेस में रिटर्न्स एंड क्रेडिट देखना है, राइट. तो परचेजेस आपकी गिवन है 3 लाख, और नहीं 3,12,000 की है. ओके, एंड इसमें रिटर्न्स भी गिवन है. रिटर्न्स आपके हैं 8,000 के. ठीक है, तो आपका कितना आ गया परचेजेस? बाहर आ जाएगा लिख के 3,04,000, राइट. नेक्स्ट इज व्हाट? वेजेस. अब हम वेजेस लिख लेंगे. अगर यहाँ पे वेजेस खाली लिखा है तो हम इसमें रिकॉर्ड कर लेंगे, अदरवाइज अगर लिखा होता है सैलरी एंड वेजेस तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में करते हैं. यहाँ पे वेजेस एंड सैलरीज होगा. अगर वेजेस जब भी पहले आएगा तो हमेशा इसको ट्रेडिंग में लिखना, ठीक है. सो 10,000. इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. मार्कशीट वो होगी, बैलेंस शीट तो टैली हो जाएगी, बट ये रूल आपका गलत अप्लाई कर जाएंगे, राइट. देन टू फैक्ट्री लाइटिंग, ये भी आपका डायरेक्ट है.
डायरेक्ट देखो, डेबिट साइड पे ना बहुत से आइटम्स आते हैं। 5,000। बस जल्दी जल्दी इसको रिकॉर्ड करते जाओ। परचेज रिटर्न वी हैव ऑलरेडी डन। कैरेज इनवर्ड आएगा आपका डेबिट साइड पे, ट्रेडिंग अकाउंट। कैरेज आउटवर्ड आता है आपका पीएल में। बताती चल रही हूँ ताकि डिफरेंस आपको पता चले। देन फैक्ट्री रेंट अगेन डायरेक्ट, और ये टू यहीं पे रहेगा, ठीक है ना, टू हर चीज के आगे लगाना है। यही इसका प्रोसेस है काम करने का। 15,000। फिर डेबिट और क्रेडिट को खाली बैलेंस करो। जो डिफरेंस आए, अगर क्रेडिट ज्यादा है तो इसका मतलब है आपका प्रॉफिट है, अगर डेबिट ज्यादा है इट मीन्स द कंपनी और द फर्म इज फेसिंग लॉसेस, ग्रॉस लॉस। देन इम्पोर्ट ड्यूटी, ये सब आपके क्या है, दीज आर ऑल योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। 4,000। ओके। देन फ्रेट, अगेन फ्रेट इज ऑल्सो 18,000। ठीक है। आई थिंक फ्रेट मैंने आपको बताया था, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑन गुड्स। देन कोल अगेन 22,000। देन गैस एंड वाटर, देखो कितने आइटम्स हैं, 11,000। देन सेल्स रिटर्न वी हैव ऑलरेडी डन। कैरेज ऑन सेल्स आपका पीएल में जाएगा। ऑफिस रेंट आपका पीएल में जाएगा। एक्साइज ड्यूटी, यस, एक्साइज ड्यूटी आपकी आएगी इसमें। ओके। तो एक्साइज ड्यूटी क्या, तो टैक्स इम्पोज बाय गवर्नमेंट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, दैट इज 16,000। ओके। एंड पैकेजिंग एक्सपेंसेस, पैकेजिंग पे भी आपका यहाँ पे आएगा। पैकेजिंग एक्सपेंसेस कितने, 16,000। नो, पैकेजिंग एक्सपेंसेस 2,000 आपके गिवन है। ठीक है। आई थिंक अब सब हमने ये कर लिया, क्लोजिंग स्टॉक भी कर लिया, ट्रेडिंग अकाउंट ऑलमोस्ट बन गया आपका। नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर, ये मुझे स्क्रॉल करना था और ओके, यहाँ पे ये हो नहीं रहा है मुझसे अभी, जस्ट वेट। यहाँ पे आपको क्या करना है, अब इन सब का टोटल कर लेंगे हम। ठीक है। हो गया ना, मच बेटर। ठीक है। तो इन सब का जब आप टोटल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपका आ गया 5 लाख प्लस 21,000। सो यू विल गेट हियर 5,21,000। तो ये आपका कितना आ रहा है, क्रेडिट का हमेशा लिख लेना अलग से ताकि पता रहे डिफरेंस क्या है। ठीक है। और डेबिट का कितना आ रहा है, चलो काउंट करते हैं। 15,000 प्लस 3 लाख, प्लस 3 लाख 4,000। ओके। फिर से 15,000 कर लिया मैंने, प्लस 10,000, प्लस 15,000, प्लस 4,000, प्लस 18,000, प्लस 22,000, plus 11,000, plus 16,000, plus 2,000. So you are getting here 4,32,000। यानी कि क्रेडिट का ज्यादा है, इसका मतलब है आई हैव गॉट हियर ग्रॉस प्रॉफिट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हियर, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, पूरा लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टोटल यहाँ पे क्रेडिट का पूरा लिखेंगे पहले हम, फिर डिफरेंस जो होगा वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। तो टोटल कितना आ रहा है मेरा, 5,21,000।
और इसका डिफरेंस क्या है, 5,21,000 माइनस 432,000, तो 89,000 का डिफरेंस है। इसमें से हमने ये माइनस कर दिया क्रेडिट का, तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास कितना आया, 89,000। ये मैं रफ में बता रही हूँ आपको, ठीक है। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट 89,000। ओके, आई होप इट्स क्वाइट क्लियर नाउ। सो just please practice the questions and related questions in your book also. Okay. And for regular practice and easy concepts, subscribe to the channel now. Okay. Economics at Ease, where you will get all the solutions for micro and macroeconomics and plus accounts for class 10th ICSC final accounts. Thank you for watching.